अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। परांकुशदासाय नमः। श्रीमद्व्यामनमुनये नमः। व्यामनमुनये नमः। श्रीरामविश्राय नमः। श्रीरामविश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्षाय श्रीमन्नाथमुनये नमः। नाथप्रिये नमः। श्रीमते सठगोपाय नमः। श्रीमते सठगोपाय। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। विश्वक्सेनाय श्रियै नमः। नमः। श्रीधराय नमः। श्रीधराय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय श्री पद्मावत्यै नमः। श्रीशेष पक्षेश्वर पद्मगर्भ सेनेश मुख्यान् प्रतिभोगयन्तां श्रीपाञ्चरात्र आगम शास्त्रमाद्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये దభ్యేశ్వాసగినః దభ్యాన్ధారజమాన పవిత్ర ప్రాణానాయమ్య. అందరూ ఒక్కసారి ముక్కు మూసుకోండి. ఓం భోః ఓం భవః ఓం సవః ఓం మహః పంచనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుః వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ మా జ్యోతిరసః అమృతం బ్రహ్మాభూర్భవస్య వరోం. కుడితడ మీద ఎడం చెయ్యి కింద పెట్టుకుని దాని మీద కుడి చెయ్యి పెట్టండి. ఈ రకంగా శ్రీ చెప్పండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందాయ నమః. మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే నేరోః दक्षिण दिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तर प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराह क्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे तिरुसुक ग्रामे पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ भगवत भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठे संवत्सराणां मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे एकादश्याम् उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्याः देवदेव्याः पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ श्री पांचरात्र आगमोक्त श्री विष्णु पद्म कपिंजल संहितोक्त प्रकारेण प्रातःकाल आराधना अनंतरं प्रातःकाल समये कन्या दान महोत्सवं श्री समये श्रीमान गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रोद्भवस्य नामधेयस्य మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మనస్సులో స్మరించుకోండి ఒకసారి అందరూ చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సర్వమంగళ కార్యాణి అనుకూల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల శోక శత్రు నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల భూత ప్రేత పిశాచి బాధ నివృత్తి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విషహరణ నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల సంపత్కర సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విద్యా ప్రాప్తి ద్వారా అఖండ ఐశ్వర్య స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామినః అనుగ్రహ ప్రసాదేన ప్రాతఃకాల
ఆరాధన అనంతరం కన్యాదాన మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే. ప్రథమతః నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. తతః స్థలశుద్ధ్యర్థం దేహశుద్ధ్యర్థం ఆత్మశుద్ధ్యర్థం ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం శుద్ధ్యర్థ శుద్ధ్యర్థం శుద్ధి పుణ్యాః వచనం కరిష్యే. తదంగత్వేన కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్యముఖేన కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య. అందరూ కూడా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి. நூரிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ போக ஸ்ரீனிவாசர் சமேத ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. மேலும் சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் என்று மகிழ்ச்சி பொங்க கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் வாழ்ச்சியின் பொருட்டு அந்த ஆயர் குலக்கொடியோடு அணிமாமலர் மங்கையோடு அன்பளவி அவுணர்க்கு என்னதானும் இரக்கமில்லாதவனுக்கு உரையும் இடமாவது இரும்பொழில் சூழ் நன்றாய புனல் நரையூர் திருவாலி குடந்தை திடம்திகழ் கோவல் நகர் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தார்க்கு இடம் மாமலையாவது நீர்மலையே என்று திருமங்கையாழ்வார் போற்றியுள்ளது போல இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ அலர்மேலமங்கை தாயார் இந்த திவ்ய தேசத்தில் பெருமானோடு எழுந்தருளி இப்பொழுது திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கண்டருள்வதை நாமும் கண்டருளி நன்றாக பிரார்த்தித்து அவள் அருளை பெற வேண்டும் என்று மேலே பெருமான் அணிமாமலர் மங்கையாம் என்று விரும்பி கலந்து இருந்த இருப்பையும் அசுர இரத்தவர்கள் மீது இரக்கமற்ற குணத்தை உடைய பெருமான் எனினும் அடியார்கள் பால் கருணை உள்ளம் கொண்டு திவ்ய தேசங்களில் தோறும் அர்ச்சை திருமேனியில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடி இணைகளில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களை வாழ்த்தி வணங்கி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடி இணைகளிலே அடியார்களுக்கு மேன்மை அளிக்க வல்லது என்ற தெளிவு எவர்களிடத்தே உள்ளதோ அவர்கள் தேவர்கள் நித்தியசூரிகள் என்று எல்லோராலும் தொழப்படுபவர்கள். ஒரு பகவத் பக்தன் விஷயத்தில் சகல தேவர்களும் நித்திய சூரிகளும் கொண்டாடும்படியாக இருப்பார்கள். செல்வநாரணன் என்ற சொல் கேட்டலும் மங்கும் கண்பனி நாடுவன் மாயமே அல்லும் நன் பகலும் இடை வீடின்றி நல்கி என்னை விடான் நம்பி நம்பியே என்று அவன் திருநாமத்தை சொல்லுவார்க்கு என்றையுமே இவர்கள் கைவிட்டது இல்லை. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி விஸ்வக்சேன ஆராதனை பூ சுத்தி ஸ்தல சுத்தி என்று முன்னம் அர்ச்சக சுவாமியை அனைத்து பக்தர்களையும் சேவித்து பிரார்த்தித்துக் கொண்டு செய்தபடி இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமியும் செய்து கொண்டு மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திரு என்ற அடைமொழி சொல்லுக்கு செல்வ என்ற சொல்லை இப்பொழுது சற்று முன் சேவித்தோம் அல்லவா. செல்வநாராயணன் என்று சொல்லும் கேட்டலும் இந்த செல்வ என்ற சொல்லை அடைமொழி சொல்லாக விட்டு செல்வநாரணன் என்றே துவங்கியுள்ளார். அது ஏற்றம் பெற்றது. திருமகளோடு கூடிய தேவனை ஸ்ரீ கோவிந்தனை நினைத்தவாறே நம்மாழ்வாருக்கு கண்களில் நீர் பெருகுவதாக அருளி செய்துள்ளார் இந்த பாசுரத்தில். திருவே செல்வம் ஆதலால் திருநாரணனை செல்வநாரணன் என்றே சாதித்தருளியுள்ளார் துவங்கும் பொழுதே. இத்துணை வன்புகழ் நாரணன் திருக்கடல் சேர்ந்து உய்வு பெறுவதோ மேன்மை தரும் என்று ஆழ்வார் சாதித்தருளியது. அதாவது செல்வநாரணன் பிராட்டியோடு தாயாரோடு அலர்மேல் மங்கையோடு எழுந்தருளியிருக்கும் பிரானை சேர்வதே உச்சிதம். பலத்தை அளிக்கும் பலன் அளிக்கும். ஆனால் எம்பெருமானை மட்டும் சேவித்தால் நம்முடைய பிழைகளை மட்டுமே நோக்கிக் கொண்டிருப்பான். இவள் கூட இருந்தால் நிச்சயமாக நமக்கு அருள்பாலிப்பான் என்பதே இவ்விடத்தில் ஆழ்வார் நமக்கு உபதேசித்து அருளியுள்ளது. தாயாரோடு கூடிய பெருமான் இரவு பகல் என்று இடை வீடு என்று தன்னை அழைக்கும் வணங்கும் அடியார்களிடத்தை அன்பு வைத்து குறைகளை தீர்க்கும் குணங்களை நிறைய பெற்றிருக்கிறான். அந்த குணங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படும்? இவனுக்கு நிறைய குணங்கள் இருக்கிறது என்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றன. அனைத்தும் எவ்வாறு நமக்கு வெளிப்படும்? நமக்கு எப்படி தெரியும்? நாம் செய்த குறைகளை மன்னித்தால் என்றா? அதைதானே அஞ்சிரைய மடனாராய் அழியத்தாய் நீயும் நின் அஞ்சிரைய சேவலுமாய் ஆவா என்று எனக்கு அருளி வெஞ்சிரை புள்ளூர்ந்து உயர்த்தார்க்கு என்விடு தூதாய் சென்றக்கால் வன் சிறையில் வன்வைகில் வைப்புண்டால் செய்யுமோ என்று மற்றொரு பாசுரத்தில், அதாவது முதல் 10 4ஆம் திருவாய்மொழியில் நம்மாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளது. அஞ்சிரைய மடனாராய் என்று தாயாரோடு கூடிய பெருமானே நமக்கு அனுகிரகம் செய்வான். கைவிடாது இருப்பவர்கள் இவளுடைய துணையாலே இவளுடைய சிபாரிசனாலே இவர்களை அடைந்து வரும் இந்த கலியுகத்தில் இருக்கும் கலி பீடிப்பில் இருக்கும்
துக்கமடையாதவர்கள் துக்கமடைந்தவர்கள் என்று துக்கமடையார்களா செய்வார்கள் இவர்கள் என்பதே ஆழ்வார். ஆக பக்தியை மட்டுமே எதிர்பார்த்து நிற்கும் இந்த திவ்ய தம்பதிகள் நித்திய சம்சாரிகளை பல இன்னல்களுக்கு இடையேயும் இவர்களையே நம்பிக்கொண்டு நினைந்து உருகி தங்களின் இன்னல்களை களைய வழிபடும் பக்தர்களையே பேறு பெற்றானாய் நினைத்து கொண்டு, அதாவது இவர்களே இந்த கஷ்டத்திலும் நம்மையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்று அந்த ஒரு சிறு பலனை வைத்து அனைத்தும் நம்முடைய பாப்பங்களை போக்கி நமக்கு வேண்டியதை அருள்கிறார்கள் என்றால் இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் இத்தனை ஏற்றத்திற்கு நாம் சொல்லவும் வேண்டுமா என்ன? இத்தகைய செல்வநாராயணன் நம்பி பரிபூர்ணன் பக்தர்களை என்றும் கைவிடான். நம்பி செல்வநாராயணன் என்று உள்ளம் முருகிய ஆழ்வார் சாதித்தருளிய ஈரச்சொல் பாசுரம். பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அடியார்களை என்றும் நழுவ விடாத குணத்தை நினைந்து உள்ளம் முருகி சாதித்தருளிய ஈரச்சொற்கள் இந்த பாசுரமாக வெளிப்பாடு அடைந்தது. பகவான் அவதரிக்கும் காலம் தோறும் தாயாரும் அவதரித்து ஆகிறது. இல்லாவிடில் ஜீவர்களின் நிலை என்னவாகும்? பகவானுடைய அவதார காரணமே ரசான பாவமாக இருந்து இருக்காது. ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்ரீ குணரத்ன கோஷம் என்ற ஸ்லோக தொகுப்பில் ஏதி மனுஜ திரஷ்சாம் லீலையா துல்யவிருத்தேஹே அனுஜனு அனுரூபா தேவி நாவா தரிஷ்ய அசரசம் அபவிஷ்யத் நர்மநாதஸ்ய மாதः தரளதத் தரதடத் அரவிந்தோ தந்தகாந்தயா தக்ஷி காந்த அதே தக்ஷி, அதாவது நேத்திரங்களை குறித்து இப்பொழுது சொல்லும் பொழுதே நாம் நன்றாக தாயாரின் நேத்திரங்களை நம்மை நோக்கும்படியாக சேவித்தாகிறது. நிச்சயமாக இன்றைய சேவிக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அனைத்து பலன்களையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய அந்த திவ்ய திருஷ்டி இவள் துணையோடே நாம் அனைத்து பலன்களும் மங்கள பலன்களும் நீண்டு, அதாவது என்றும் அழியாத பலன்களை தருபவர்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். சோதித்து இவர்களுக்கு நல்லதை செய்யும்படியாக இருக்கும் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். ஆசாரசம் அபவிஷ்யத்து நர்மநாதஸ்ய மாத தாரதளது அரவிந்தோ தந்த காந்தயா தக்ஷி என்று ஸ்ரீ குணரத்ன கோஷத்தில் ஸ்ரீ பராசர பட்டர், அதாவது ரங்கநாச்சியிடமே வளர்ந்தவர் இவர், நன்றாக அனுபவித்தவர், போர பொலிய திருவடிவாரத்திலே இருந்து நன்றாக அனுபவித்தவர் இந்த பராசர பட்டர் என்னும் சுவாமி மகனீயர் ஸ்ரீ குரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரர். நன்றாக உணர்ந்து நன்றாக அனுபவித்தவர் இந்த பாசுரங்கள். ஆழ்வாரின் பாசுரங்கள் ஈரச்சொற்கள் என்றால் அதற்கு இன்னும் அணி செய்வது போல இந்த ஸ்ரீ குணரத்ன கோஷம் என்று இருக்கும் என்பர் பூர்வர்கள். குளிர்ந்த தாமரை மலர்ந்தும் மலராததுமாக அதாகில் சிறிதை இதழ் விரிந்து இருக்கும் நிலையில் உள்ள தாமரை, அதை போன்ற அளவுபட்ட தேவையான பேச்சை மட்டுமே பேசுபவளான தாயாரின் திருநேத்திரங்கள். சும்மா லொடலுடன் பேசக்கூடாது. எப்பொழுது அதாவது பகவானிடத்தில் சிபார்சு செய்ய வேண்டுமோ, தன்னை நோக்கிய அணுகி தன்னை வேண்டி இருக்கும் பக்தர்களின் குறைகளை தீர்க்க வேண்டுமோ அப்பொழுது மட்டுமே பேசுபவள். யாரிடமும் பேசவில்லை. திருவடி அங்கே அந்த இலங்கையில் சென்று அவனை கூட நம்பவில்லை. திருவடியை சோத்தியம் செய்து பின்பே இவனிடத்தில் அனைத்தும் சொல்ல இயலுமா என்று சூடாமணியை அளித்து மேரே தானும் ராமனும் ஏகாந்தத்தில் எப்படி பேசினோம் என்பதை திருவடி வாரத்தில் அதாவது ஆஞ்சநேயரிடத்திலே அனைத்தும் சொன்னாள். வேறு யாரிடத்தும் சொன்னாள் இல்லை. தன்னுடைய இருந்த திருச்சடையிலும் கூட திருச்சடை அவளிடத்தில் கூட சொல்லவில்லை. இப்படி தேர்ந்தெடுத்து அளவுபட்ட பேச்சை மட்டுமே பேசுபவளான இந்த தாயார் எப்பொழுது வேண்டுமோ அப்பொழுது எம்பெருமானிடத்திலே சிபார்சு செய்து நிச்சயமாக சத்தியமாக அனைவரின் குறைகளை தீர்த்து அனுகிரகிப்பாள். மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சற்று சேவிப்போம். अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विचतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सपेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यश्रीभक्वीस्तनवो वेदपृष्ठाः तजामटन्तः साधामाज्येषु पयक्कस्यामपतगोदकीणां वैश्वानरोऽस्त्यभिर्मा पुनातु वातः प्राणेनेश्वरो मयो भूः द्यावा पृथिवीभिकसापयोभिः वृतापरीयज्ञे मा पुनीतां मृगद्भिः सविरस्त्रिभिः परिशिष्ठयद्देव मन्नुभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति पिडिभिः सम्भृतकोरसम् सर्वकोशपोतमस्नाति पतितं मातरिस्वना पावमानेर्यो अध्येति पिडिभिः सम्भृतकोरसम् तस्मै सरस्वतीदिहे क्षीरकोशत्पिर्मधूतकं पावमाने स्वस्तिगनीः सुजुखाहिपयस्वतीः
इडिभिस्सम्भृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगोहितं पावमानेत्य सन्तुनः यमल्लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणैः सुजुघाघिघृतश्च्युतः इडिभिस्सम्भृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगोहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं सतोत्यामकमहिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिपुनातु मा जातवेदामोर्जगञ्चा पुनातु भूद्भुवस्सुवः तत्संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेडजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रजापतिरश्वमेधमधुजता सोऽस्मात् सृष्टोपा अक्रामत् समष्टाटतिभिरनुप्रायुङ्क्ता समाप्नोत् समाप्त्वाष्टाटतिभिरनु तदष्टादिशन आलभ्यन्ते यज्ञमेव तीराप्त्वा गजमानोऽवरुन्धे संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा तदष्टादिनः द्वादशमासाप्यञ्जत्वः संवत्सरोष्टादशः यदष्टादिशन आलभ्यन्ते संवत्सरमेव तीराप्त्वा गजमानोऽवरुन्धे अकृष्टेऽन्यान् पशूनुपाकरोति एतदेषयोपेष्वष्टादिशनो जामित्वाजा नवनवारभ्यन्ते सवेदगत्वाजा यदारण्ये स्वर्गस्थापकेत् यवस्येतां पिता पुत्रौ यथा नक्रामेजुः विदोरङ्ग्रामयोर्ग्रामान्तौ स्याताम् ऋषिकाः पुरुषौ व्याघ्रा परिमोषण आवजाजने तुष्करा अरण्ये स्वाजाजेरन् तदाहुः अपसवो वा एते यदारण्ये सद्गस्थापकेत् क्षिप्रे गजमानमरण्यं मृतको हरेजः अरण्यागतनाक्यारण्यापसविगति यत्पशोन्नालभेता अनवरुद्धास्य पशवस्य यत्पद्यच्चिकृतानुत्सृजेत् यज्ञवेदसङ्कुलजात् यत्पशूनालभते तेनैव पशूनवरुन्धे यत्पद्यच्चिकृतानुत्सृजत् यज्ञवेधसाजा अवरुद्धास्य पशवः भवन्ति न यज्ञवेधसम्भवति न गजमानमरण्यं मृतको हरन्ति ब्राह्मणैः सत्तच्छापयति एतेऽपि पशवः क्षेमो नाम सम्पिता पुत्रा व्यवस्थितः समध्वानक्रामन्ति समन्ति गङ्ग्रामयोर्ग्रामान्तो भवतः दर्शिकाः पुरुषौ जाघ्रा परिमोडिन आवजाजनि तस्करा अरण्येष्वाजागन्ते प्रजापतिरकामयतो भो लोकावरुन्धी चेति सकेतानुभजान् पशो न पश्यते राम्यागश्चारण्यागश्च तानालभता तैर्वै स उभो लोकावरुन्धा राम्येरेव पृथिवीमल्लोकमवरुन्धा आरण्ये रमं तत्राम्यान् पशूनालभते ममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सर इत्याहुः च इतगिदश्चातुर्मासानि संवत्सरं प्रयुङ्क्तगिति एतावानवे संवत्सरः इत्यादुर्मास्यानि यदेते चातुर्मास्या प्रसव आलभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव ते संवत्सरं यजमानोऽवरुन्धे शिवा एष प्रजगा पशुभिरुध्यते संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरस्य वर्तो लोकः सुवर्कं तु लोकं नापराध्नोति
प्रजापि पशव एकादशिनी यदेष ऐकादशिना पशव आरभ्यन्ते साक्षादेव प्रजां वसो न गजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजता सा धृष्टाश्वमेधं प्राविशत् सान्दतिभिर्नप्रायुङ्क्ता तामाप्नोत् तामाप्त्वारतिभिरवारुन्धा यद्दशेन आलभ्यन्ते विराजमेव तीराप्त्वा गजमानो वरुन्धे एकादश दशत आलभ्यन्ते एकादशाक्षरा तृष्टव श्रेष्ठभा पशवः पशूनेवावरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्याः पशवो भवन्ति अस्मत्य सर्वत्वाजा नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपा पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपा पशवः समृद्ध्यै तस्मै वै लोकाय ग्राम्या पशव आलभ्यन्ते अमुष्पा आरण्याः तद्ग्राम्यान् पशूनालभते इममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः उभयान् पशूनालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयोर्लोकयोरवरुद्धि उभयान् पशूनालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुद्धि उभयान् पशूनालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयेषां पशूनामवरुद्धि जगस्त्रिको भवन्ति जग इमे लोकाः येषां लोकानामाप्तिः ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामागति यत्समानेभ्यो देवताभ्योऽन्ये पशव आलभ्यन्ते अस्मिन्नेव लोके कामाहं दधाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रिकाणां त्रिकाणागोसाः वापाजुहोति श्रियाव्रत वै देवाः श्रियाव्रत इमे लोकाः येषां लोकानामाप्तिः येषां लोकानां क्लृप्तिः पर्यज्ञकृतानादुन्यानुत्सृजन्ते हि गोसादि युञ्जन्ति प्रध्नमित्याह असौ वा आदित्यो प्रध्नः आदित्यमेवास्मि नक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मि नक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वेदरण्डे वायुमेवास्मि नक्ति परितस्थुषगित्याह इमे वै लोकाः परितस्थुषः इमानेवास्मि लोकानि नक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वीरोचनादिवी नक्षत्राण्येवास्मि रोचकति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मि नक्ति हरिविपक्षसेत्याह इमे वै हरिविपक्षसा इमे एवास्मि नक्ति सोनाशुष्णो निर्वाहसेत्याह अहोरात्रे वै निर्वाहसा अहोरात्रे एवास्मि नक्ति एता एवास्मि देवता गणक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि केतं कण्वन्न केतवकितिध्वजं प्रतिमुञ्चति यस एवेन घोराज्ञा अङ्गमगति ये मोदस्य भवति प्रतीकमित्याह यथा गजुरेवैतत् ये देवन्धानस्य वितः पूर्व्या सगित्यध्वर्युर्गजमानं वाचक चभिजित्ति परा वा एतस्य गद्यजेति यस्य पशुरूपाकृतोऽन्यस्नवेद्याचेति एतत्कस्तोतरेतेन पथा पुनरस्तमावर्तयाति न इत्याह वायुर्वै स्तोता वायुमेवास्य परस्तात् तथात्यावृत्ति यथा वै हविनोतिहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदत्वस्य स्कन्दति यदस्योपाकृतस्य लोमानि सीगन्ते यद्वालेषु काचानापगन्ति लोमान्येवास्य तत्सम्भरन्ति भूर्भुवस्सुवरिति प्राजापत्याभिरापगन्ति प्राजापत्यो वा अश्वः स्वयेवैनं देवतगा समर्थयन्ति भूरिति महिषी भुवगिति वा वाता सुवर्ति परिवृत्ति येषां लोकानामभिजुक्ति ऋण्मजा अक्काचा भवन्ति ज्योतिर्वै हिरण्यं
राष्ट्रमस्वमेधः ज्योतिश्चैवाग्नेराज्यं च समीचे दधाति सहस्रं भवन्ति सहस्रसंमितस्सु भक्तोलोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजुक्ति अपवा एतस्मात् तेजगन्धिकं बसवस्वीक्रामन्ति यो अश्वमेधेन गजते पशवस्तान्यं दुकागत्तेन छन्दसे महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजोकागत्ति तेन सैवास्ते तेजोपरुन्धे रुद्रास्त्वा अञ्जं दुःखेत्यभेर्छन्दसे दिवावाता तेजो वा आज्यं इन्द्रकन्दुष्टके तेन सैवास्ताङ्गिन्द्रकमवरुन्धे आदित्यास्त्वाञ्जं द्विजागतेन छन्दसेति परिवृत्ति तेजो वा आज्यं पशवो जगति तेन सैवास्ते पशूनवरुन्धे पत्नयो अभ्युञ्जन्ति सुया वा एतद्रूपं यत्पत्नयः सुखमेवास्मिन् तद्वसति तास्मात् तेजगन्धिकं बसवस्तीरपक्रामन्ति लाजीच्छाचीन यशो ममा यत्यतिरिक्तमन्नमस्वाजोपाहरन्ति यजामेवान्नादीन् कुर्वते एतद्देवान्नमत्येतदन्नमध्ये प्रजापतिगित्याः राजामेवान्नाच्यं दुहते यदुरामजिघ्रेत् अग्निप्रसदादित्यवघ्रातकेत् अवहीव जिघ्रति आत्रान् वाजीक्रमेरत्यक्रमे द्वाजीद्यवस्ते पृष्ठं पृथिवी साधात्सावेत्यास्वामनमन्त्रगते तेषान् लोकानामभिजित्ति समिद्धा अञ्जं कृतुरम्मतीदामित्यस्वस्याप्रियो भवन्ति तिरोपत्वाजा तेजसा वा एतब्रह्मवत्यथेन युध्यते यो अश्वमेधेन गजते होताज ब्रह्माज्यं वदतः तेजसा देवीनं ब्रह्मवत्यसेन च समर्थगतः दक्षिणतो ब्रह्मा भवति दक्षिणतः आगतनो वै ब्रह्मा पादहस्पत्यो वै ब्रह्मा ब्रह्मवक्षसमेवास्य दक्षिणतो दधाति तस्मात् दक्षिणार्धो ब्रह्मवक्षचतुरः उत्तरतो होता भवति उत्तरत आगतनो वै होता तेजो वै होता तेजो वा अग्निः तेजगेवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोर्धस्तेजस्वितरः योपमाभीतो वदतः यजमानदेवच्यो वै योपः यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवत्यसेन च समर्थगतः चिज्जस्सुदासीत् पूर्वजित्तिरित्याह गौरवेवित्य पूर्वजित्तिः युवमेव वैक्यमवरुन्धे चिज्जस्सुदासीत् बृहत्वजगित्याह अस्ववे बृहत्वजः अस्तमेवावरुन्धे चिज्जस्सुदासीत् विसङ्गतेत्याह रात्रिवे विसङ्गता रात्रिमेवावरुन्धे चिज्जस्सुदासीत् पिलिप्पिलेत्याह श्रीर्वै पिलिप्पिला अन्नाच्यमेवावरुन्धे कस्तुते काकीदतीत्याह असो वा आदित्ये काकीदती तेजगेवावरुन्धे कवस्विजागते पुनरित्याह चन्द्रमा वै जागते पुनः आजुरेवावरुन्धे चिज्जस्विध्यमस्य भेटदित्याह अग्निर्वै हिमस्य भेटजं ब्रह्मवत्यसमेवावरुन्धे चिज्जस्विदावपनं महदित्याह अयं वै लोक आवपनं महत् अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति पृच्छामि तावरमन्दं पृथिव्यागित्याह वेदिर्वै परवन्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्सदाभिमित्याह यज्ञो वै भुवनस्सदाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा विष्णोहत्वचरेदगित्याह सोमो वै विष्णो स्वस्यरेतः सोमपीठमेवावरुन्धे पृच्छामि वाचस्परं यो वेत्याह ब्रह्म वै वाचस्परं यो मा ब्रह्मवत्यसमेवावरुन्धे अपवा एतस्मात् प्राणाक्रामन्ति यो स्वमेधेन गजते प्राणाय स्वाहा व्यानाय
स्वाहेति संज्ञप्यमानाहुतिर्जुहोति प्राणानेवात्मं दधाति आत्मा प्राणाः अपक्रामन्ति अवन्ति स्थावन्ति स्पावन्तो जगन्त्वाप्तिकाणाः परिरिक्षमाप्यानां यथीनां त्वानधिपतिको हवामहे वसो ममेत्याः अपैवास्मि तद्ध्रुवते अथो ध्रुवञ्च वीनम् अथो अन्येवास्मैन्नुवते प्रतिगन्ति जग इमे लोकाः பேச்சை மட்டுமே, அதாவது மிதமான பேச்சை பேசி அடியார்களுக்கு சிபார்சு செய்பவள் இவள். அழகியதும் நீண்டதும் கூர்மையதுமான கண்களை இவளுடையது. தாமரை கண்கள், அன்று அலர்ந்த தாமரை கண்கள் என்பர். தாயான பத்மாவதி தேவியின் கண்கள் அன்று அலர்ந்த தாமரை இதழ்கள் போன்று சிறிதே செங்கண் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ என்று பாடவல்ல நாச்சியாரான ஆண்டாள் சாதித்தருளியது போல அடியார்கள் மீது அழகான செம்பஞ்சு போன்ற இந்த மெல்லைய வருடி கொடுப்பது போல இந்த திருநேத்திரங்கள். புருஷே பிராணாः பிராணானேவாத்மந்தசதே நைभ्य प्राणा अपक्रामन्ति अम्बे अम्बाल्यम्बिकै पत्नी मुदानगति तक्वदेवीनां सुभगैकां कीलवाधनीत्याः तव एवीनामुपनगति सुवर्गे लोके सम्प्रोन्वाथामित्याः सुवर्गमेवीनां लोकं गमगति. பக்தர்களின் ஆழ்மனத்தில் இருக்கும்படியான எண்ண அலைகளை உணர்ந்து அனுகிரகிக்கும்படியான நேத்திரங்கள் நன்றாக அவர்கள் மனதில் ஊடுருவிச் சென்று அந்த எண்ண அலைகளை நன்றாக உணர்ந்து, தாய் அல்லவா, உணர்ந்து அதற்கு தக்கது போல சிபாரசு செய்து அனுகிரகிப்பவள் இந்த தாயார். பத்மாவதி தேவியின் கண்கள் பெருமானின் திவ்ய அவதாரங்கள் தோறும் அவனுக்கு தக்கவாறு அவதரிக்க, அப்படி செய்யாவிட்டால் நாயகனான பெருமானின் அவதார லீலையானது ரசமற்று போயிருக்கும் என்கிறார் இதில் சுவாமி வட்டர். அது என்ன? அசரசம் என்று ஒரு சொல் வருகிறது. ரசம் எனில் சுவை மிக்கது, அனுபவிக்கத்தக்கது, எல்லோரும் தெரிந்த சொல். சரசம் ஒன்று இணைந்து உள்ளன்போடு அடியார்களை ரட்சிக்கும் விதத்தாலே ஐக்கரஸ்யம் தோற்ற, அதாவது ஏகரசனையோடு அடியார்களை ரட்சித்தல். ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு இவர்களுக்கு இது செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டியதை செய்பவர்கள் அடியார்களை ரட்சித்தல். இதில் அ என்று எடுத்து மறுத்துச் சொல்வது. கவி, அதாவது ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ரசம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கலாம் அந்த ஸ்லோகத்தில். அதாயில் அரசம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று அடியார்களை ரட்சிக்கும் விதத்தில் தாயாருக்கு இல்லாவிட்டால் சுவையற்று இருக்கும் என்று சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போயிருக்கலாம். அசரசம் என்று சொல்வானேன்? ரசம் சரசம் அசரசம் இருவரும் சேர்த்தியிலே ஒன்றுபட்டு அடியார்களை ரட்சித்து அருளும் விதத்தாலே, சரசமாக ஒன்றுபட்டு அருளும் விதத்தாலே அடியார்கள் வாழ்ச்சியை பெற்று மகிழ்வர். சரசம் என்றார் என்ன? மனம் ஒன்று இணைந்து இவள் சிபார்சு செய்வதற்காகவே அவன் இருப்பான், அவன் கேட்பதற்காகவே இவள் சிபார்சு செய்கின்றாள். ஆக சரசமாக இவனை கேட்பச் செய்து
ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி என்று சொல்கிறது அல்லவா வேதம். அதுபோல அடியார்களின் குறைகளை தீர்க்க இவளிடத்தை செய்து மேலே திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் அனைவரும் தாயாரின் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தித்து சரசமாக இருக்கும் இந்த பிரார்த்திகளில் தாயாரும் பிரானும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த சேர்த்திலே பிரார்த்தித்து இனியவளான தாயார் கூடியிருந்து காரியம் செய்யாவிடில் ஏது ரசம் ஆகவே அசரசம் ஆக சரசமாக இருந்து அடியார்களை ரட்சிப்பதே இவர்களின் பேர். அதற்காகவே கூடியிருந்து நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இவர்களோடு கூடியிருந்தே நாம் குளிர வேண்டும். இப்பொழுது தலம்பராலு அதாவது அற்றதை பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஜிலக்கர வெல்லம் சீரகம் வெல்லம் என்று சேர்த்து பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்தில் சமர்ப்பிப்பர். அது இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. சுவைமிக்கதான ரசம் சரசம் அசரசம் இருவரும் சேர்த்திலே ஒன்றுபட்டு அடியார்களை ரட்சித்து அருளும் விதத்தாலே சரசமாக ஒன்றுபட்டு அருளும் விதத்தாலே அடியார்கள் வாழ்ச்சியை பெற்று மகிழ்வர். சரசம் என்றால் பெருமானும் மனதுக்கு இனியவளான தாயார் கூடி இருந்து என்றும் காரியம் செய்யாவிடில் ஏது ரசம். ஆக சரசம் அல்லது அசரசம் என்றே சுவாமி பட்டரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த ஸ்லோகம் இது. பிராட்டியின் துணை எத்துணை அவசியம் இந்த உலகில் அத்தனை அடியார்களுக்கும் தேவை துணையாக இருக்கிறது என்பதனை உணர்த்தவே இந்த ஸ்லோகத்தின் அதாவது உயிர் பெற்ற உயிர் நாடியாக அமைந்த சொல். அந்த சொல்லே பொருளாக கொள்ள வேண்டும். நாம் இப்படி கூட இருந்து எம்பெருமானோடு பிராட்டியோடும் கூட இருந்தே அனைத்தும் அனுபவித்தவர் இந்த பராசர பட்டர் என்னும் இந்த மகனீயர். இவர் சாதித்தருளிய அனைத்து சொற்களும் ஸ்லோகங்களும் பலனை தர வல்லது, பலன் தரும் என்று நன்றாக நம்பி இந்த புண்ணிய வேளையில் திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்கும் இந்த வேளையில் இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பெருமானுக்கு போக ஸ்ரீனிவாசருக்கு வெல்லத்தையும் சீரகத்தையும் கலந்து அதை மணப்பெண் மணமகனுக்கு தலையில் சூடுவர்கள். அந்த கிரமத்தை இப்படத்தில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் கருணை வல்லபையான் தாயார் துணை இருக்க அடியார்கள் குழாங்களுக்கு என்ன குறை இருக்க போகிறது? நிச்சயம் காரியம் நிறைவேறும். அண்ணல் செய்து அலைக்கடல் கடந்து அதனுள் கண்ணுதல் அஞ்சுண்ண கண்டவனே விண்ணவர் அமுதில் வரும் பெண்ணமுதுண்ட எம்பெருமானே என்று திருமங்கை ஆழ்வாரும் அருளி செய்துள்ளது நன்றாக இவ்விடத்தில் நோக்கத்தக்கது. அமுதில் உதித்த பெண்ணமுதான தாயார் சௌந்தர்ய லாவண்ய சௌகுமாரியாதிகளாலும் தயை காருண்ய வாத்சல்யாதி குணங்களாலும் பெருமான் அவதரிக்கும் காலம் அவதரிக்கையாலும் ஸ்தான பெருமைகளாலும் ஒரு அடியார்களின் மீது உள்ள பற்றினாலும் அடியார்களை ரட்சிக்கும் அந்த நெடுநோக்கு உடையவளான இவள் அதற்குரியதான செய்கைகளினாலும் மேலான ஐஸ்வர்யங்களை உடையவளான தாயார் ஸ்ரீ பத்மாவதி அம்பே அம்பால்யம்பிக இதி பத்னி முதானகதி அக்வதேவீனாம் சுபகேகாம் பீலவாசனீத்யாஹ தாப ஏவை நாமபனகதி சுவர்க்கே லோகே சம்பிரோன்வாதாமித்யாஹ சுவர்க்கமேவீனா அல்லோகங்கமகதி தாஹம் ஜானி கர்ப்பதமாத்மஜாதி கர்ப்பதமித்யாஹ பிரஜாவே பசவோ கர்ப்பः பிரஜாமேவ பசூனாத்மன்धत्ते தேவா வா அஸ்வமேதே பௌமானே
सुवर्कल्लोकन्न प्राजानन् तमस्व प्राजानात् यत्सोचिभिरसि पथां कल्पयन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाति गायत्री त्रिटुब्जगतीत्याह यथा केजुरे वेदत स यस्सोच्य भवन्ति अकस्मयोर्जता हरिण्यः अष्टमी लोकस्य रूपमकस्मयः अन्तरिक्षस्य रजताः दिवो हिरण्यः दिशो वा यस्मयः अवान्तरदिशा रजताः ऊर्ध्वा हरिण्यः स एवास्मै कल्पयति तस्माच्छति कस्माभिशास्तीत्याहायिगोसाजी अपवा एतस्मात् श्रीराष्ट्रं ग्रामति यो अश्वमेधेन गजते ऊर्ध्वामेनामुत्सकदादित्याः श्रीर्वैराष्ट्रमश्वमेधः सुखमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुत्सकति वेणुभारङ्गिता विवेत्याः राष्ट्रं वै भारः राष्ट्रमेवास्मै पर्योहति अथास्यामुक्तमेधतामित्याह श्रीर्वैराष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरिणी भवतीत्याह विद्वैहरिणी राष्ट्रयवः विसञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति न पुष्टं वसुमन्यतगित्याह तस्मात् राजा पाशोन्न पुष्यति शूद्रागतत्तिचाराणपोषागसनागतीत्याह तस्मात् वैशे पुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते ययैकाशकुन्तिकेत्याह विद्वैसकुन्तिका राष्ट्रमश्वमेधः विसञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति आहरामेति सर्पतीत्याह तस्मात् राष्ट्रादिभिषस्तृपन्ति आहसङ्गभेपजगित्याह वेद्वैकभः राष्ट्रं वसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विसङ्घातुकं माता च ते पिता जगित्याह इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अत्रं वृक्षस्तदः जगित्याह श्रीर्वै वृक्षस्याग्रमः श्रियमेवावरुन्धे प्रसुलामीति ते पिता गभे मुष्टिमथगोसगदित्याह विद्वैगभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विसङ्घातुकम् अपवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे पूतुं वदन्ति तधिक्राविण्ण अकारिषमिति सुरभिमति मृजं वदति प्राणावीदुर्भयः प्राणानेवात्मं भुक्ते मयिभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति आपोहिष्ठामय भवैत्यद्भिर्माज्जगन्ते आपो वे सर्वा देवताः देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते प्रजापतिप्रजा श्रुत्वा प्रेषानुप्राविशत् ताभ्य पुनः सम्भवितुं नाशक्नोत् सोऽब्रवीत् रेध्यावादेत्सः यो मेध पुनः सम्भरदिति तं देवा अश्वमेधेनैव समभरन् ततो वीत आध्रुवन् यो अश्वमेधेन गजते प्रजापति सम्भरद्बध्नोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अथो अन्नं वै विराट् अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते प्राजापत्यो वा स्वः प्रजापतिमेवालभते अथो श्रीर्वाचेकदभं श्रियमेवावरुन्धे नामालभते यज्ञो वै गोः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गोः अन्नमेवावरुन्धे यावी आलभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पाच्यज्यगतं पुरुषञ्चारण्यागत्सोऽप्यन्ते गुणधारी भूवा एतो पशु आलभ्यते यश्चापमागश्चापरामः ते स्वभजे गज्ञबद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिघुता भवन्ति
नैनन्दं कृष्णो प्रसवज्ञबद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिभूता हि कुंसन्ति यो स्वमेधेन गजते य उच्चैनमेवं वेद प्रथमेन वा एतत्त्वमेन राधा तदुट्टोमेन कृते राजानामुत्तरे हन्ये एकविगुंसे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति एकविगुंसात् प्रतिष्ठाया ऋतूनन्वारोहति ऋतवो अभिपृष्ठानि ऋतवः संवत्सरः ऋतुर्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाया देवता अभ्यारोहति सक्कवय पृष्ठं भवन्यन्यते नच्छन्तः अन्येऽन्येव एते वधव आलभ्यन्ते उतेव ग्राम्याः उतेवारण्याः आहारेव रूपेण समर्थयति अथो अन्न एवैदमर्यते तदाहुः अपदवो वा एते ऋजावकश्चारण्याश्च एतेऽपि सर्वे वधवः यद्गौर्यागिति गौर्यान् प्रसोक्तमेऽन्नालभन्ते अन्नालभते तेनैवोभयान् प्रसो न वरुन्धे प्राजावत्या भवन्ति अनभिजितस्याभिजित्यै सौरेर्नवश्वेतावसा अनुपञ्जा भवन्ति अन्तत एव ब्रह्मभट्टसंवरुन्धे स्वामायत्वराज्ञेनो वाहावनद्वाहाविति त्वञ्जनः पशूनालभते अहोरात्राणामभिजित्यै पशुभिर्वा एतद्विध्यते यो स्वमेधेन गजते सकलं कल्माढङ्गिगिरीविं विलीकयमिति त्वान् पशूनालभते पशुभिरेवात्मानको समर्थयति ऋतुभिर्वा एतद्विध्यते यो स्वमेधेन गजते विसङ्गास्त्रियो वा नन्दागत्पशूनालभते ऋतुभिरेवात्मानको समर्थयति आवा एतपदभ्यो विच्यते यो स्वमेधेन गजते पर्यट्यकृता उत्सृजन्ति आमृस्काय प्रजापतिर्कामहेतमहानन्नादस्यामिति सकेतावस्वमेधे महिमानावस्तुते तावगृह्णीता ततो वेदमहानन्नादो भवते यच्चापकेतमहानन्नादस्यामिति सकेतावस्वमेधे महिमानो गृह्णीता महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या भीमपा ताजा महिमा यत्पुपां महिम्ना भगतः परिगृह्यति यजमानमेव राज्येन भगतः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः परिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये ते वा एते स्व एव मेध्य उभदेव रुध्यन्ते यत्पुपां महिम्ना भगतः परिगृह्यति तानेव भयान् प्रेदाति वैश्वदेवो वा स्वः संयत्वा जावत्सङ्कुर्यात् सा देवता विभागाः ताभागसे येनभ्यध्यजेत् देवता अभ्यस्तमनं स्यात् तेकान्तकृत्वा अभ्यान्यम्भोवा गजति आच्यमवदानं कृत्वा प्रतिपक्षाय माहुतेर्जुहोति ता एव देवता विभागाः ताभागधेकेन समर्थयति न देवता अभ्यस्तमनं दधाति चतुर्दशैतानवाकाञ्जुहोत्यनन्दरत्यै प्रकाशाय स्वाहेति वञ्चितसं पञ्चदश वा अर्थमादत्रात्रयः अर्थमादते संवत्सर आप्यते देवासुरा संयत्वा आसन् नृत्यस्पृष्टकृतः अस्वस्तमेध्यस्तमयमुद्धानमुद्धरामहे अथैतानपि भवामेति चेदो हि वरहनन्तः ततो देवा अभवन् परासुराः स्पृष्टकृत्यो लोहितं जुहोति भ्रातृव्याभिभूति भवत्यात्मना परा अश्च भ्रातृव्या भवति गोमग्रन्थेन प्रथमामायुञ्जुहोति पशवो वीगोमृगः रुद्रो कृते रुद्रादेव पशूनं तु प्रभाति
अथो यत्रेदाहुरिदहुरिदे अतप्रसूनभ्रमण्यते अतुरभेन द्विजीजामाहिन्यहति वा एकदभावते उच्चादेव प्रजा अन्तर्दशादि अथो यत्रेदाहुरिदहुरिदे अतप्रजाभिमन्यते अयोत्मयेन कमण्डलदातरीयाः आहुतिञ्जोत्याजास्त्ववे प्रजाः पुत्रोऽप्यस्तगते पुत्रादेव प्रजा अन्तर्दशाति अथो गत्प्रेताहुतिर्होगते अतत्र रुद्रप्रजा अभिमन्यते स्वजनो रोचमानस्वभनस्वभमान कल्याणः
ओमस्वस्य वा आलब्धस्य मेधमुदक्रामत् तदस्वस्त्वमीयमुभवते तदस्वस्त्वमीकं जुहोति तमेधमेवैनमालभते आज्येन जुहोति मेधो वा आज्यं मेधो अस्वस्त्वमीयं मेधेनैवात्मन्मेधं दधाति षट्यकं रतं जुहोति षट्यकं रदक्षरा बृहति पार्घता पशवः सा पशूनां मात्रा पशूनैव मात्रया समर्थयति स्वागद्भोगसेर्वा कणीकसेर्वा जुहुजात् पशून्मात्रजाप्यर्थयेत् षट्यकं रतं जुहोति षट्यकं रदक्षरा बृहति पार्घता पशवः सा पशूनां मात्रा पशूनैव मात्रया समर्थयति अस्तमे जगो हत्वात्युपदा जुहोति युपात्मे पुरुषात्प्रतिष्ठः तदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति तदाहुः अस्तमे जम्बोर्वको होतौजा द्विपदा इति अश्वो वा अश्वस्त्वमेजं पुरुषोत्युपदा आह अश्वस्त्वमे जगो हत्वात्युपदा जुहोति तस्माद्युपाच्यदुष्पादमत्ति अथो अत्युपत्यवटदुष्पदप्रतिष्ठापयति विपदा हुत्वा नान्यामुत्तरामाहुतिं जुहुजात् तदन्यामुत्तरामाहुतिं जुहुजात् सप्रतिष्ठा जास्तवेता विपदा अन्ततो जुहोति प्रतिष्ठित्यै పద్మావతి మది దోచిన శ్రీనివాసుడు పద్మావతి మది దోచిన శ్రీనివాసుడు భక్తావన దీక్షారత చిద్విలాసుడు చిద్విలాసుడు శ్రీనివాస మనోరాజ్యనా विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ